Julia students, I am Satan Dolkar, lecturer in education from Government Higher Secondary School, Timosgam. Today, I will take your education class. In this class, we will discuss about the statistics in education. First of all, we will discuss about the syllabus. First, we will discuss measures of variability. In this, we will discuss concept of variability, methods determining variability through range, mean deviation, quartile deviation, and standard deviation. First of all, we will discuss the measures of variability, the concept of variability. Concept of variability is also known as dispersion. This is dispersion. In statistics, measures of variability describes how scores in a given data set differ from one another. For example, the spread, clustering of points. The term like dispersion, variation, spread, scatter, deviation, and variability give the idea of homogeneity or heterogeneity of the data under study. Example, suppose a test of education has administered to a group of 50 boys and to a group of 50 girls. 50 girls, 50 girls. The mean score for boys as well as girls taken separately is the same, that is 35. Mean is 35. So far as the mean goes, there is no difference. There is no difference in the performance of the two groups. But suppose the boys' scores are found to range from 20 to 55, 20 to 55, and girls' scores from 25 to 55, 25 to 55. This difference in range shows that boys cover more territory, are more variable than the girls, and this greater variability in one case than the other may reveal about which mean do not give any indication. If the range is small or the variability is small, it means that the group is made up of individuals of nearly the same ability, or it is homogeneous. It is homogeneous and most of the scores fall around the same point on the scale. But if the range or variability is large, the scores will be distributed from high to low. The group is heterogeneous or contain individuals of widely differing capacities. Now, here we can represent this situation graphically. In this graph, we have two frequency distribution of the same area and same mean of 50, but of very different variability. Group A, here Group A ranges from 20 to 80, and Group B from 40 to 60. Group A is 3 times as variable as Group B. Here, Group A, this is Group A, which is ranges from 20 to 80, and Group B ranges from 40 to 60. There is 3 times variable. How? If we find range हम इसके बाद दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। रेंज अगर हम ग्रुप ए का रेंज निकालते हैं तो
80 minus 20, that is 60, and here रेंज अगर ग्रुप बी का निकालेंगे तो 60 minus 40, that is 20. दैट मीन्स यहाँ पे ग्रुप जो हमारा ग्रुप बी है, ग्रुप ए जो है हमारा 3 times वेरिएबल है. इन दोनों में जो वेरिएशन है 3 times है. 20 into 20 into 3, that is 60. लेकिन हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो सेम है. सेंट्रल टेंडेंसी जो कि हमारा मीन है, मीन इज इक्वल टू 50. अगर हम मीन के हिसाब से देखेंगे तो इनमें कोई डिफरेंस नज़र आपको नहीं आएगा. अगर रेंज अगर हम इन दोनों ग्रुप्स का रेंज निकालेंगे तो ग्रुप ए जो है हमारा 3 times वेरिएबल है. इसके बाद मैं आपको रेंज के बारे में बताऊंगी. रेंज कैसे निकालेंगे और रेंज का क्या फॉर्मूला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. रेंज पढ़ने से पहले रेंज निकालने से पहले मैं थोड़ा आपको रेंज के बारे में बताती हूँ. रेंज होता क्या है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट स्कोर and the lowest score in a series. It is the most simple and general measure of distribution. The formula for calculating range is R is equal to H minus L. H is the highest score and L is the lowest score. Now आप थोड़ा रेंज को कैसे कंप्यूट करेंगे, हम थोड़ा इसका स्टेप्स आप समझिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द डाटा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा में से हम हाईएस्ट स्कोर को निकालेंगे और उसके बाद लोएस्ट स्कोर को फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद क्या करना है, हमने सबट्रैक्ट द लोएस्ट स्कोर फ्रॉम द हाईएस्ट स्कोर. उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे. तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाया है. इफ इन अ सीरीज द स्कोर्स आर 6, 18, 9, 57, 42 and 98, then the range will be calculated as under the highest score. यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर क्या है, इन सब में से हाईएस्ट स्कोर, सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या है आपका 98 जो है वो हाईएस्ट स्कोर है. हम यहाँ लिखेंगे द हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 98. उसके बाद हमने क्या करना है, लोएस्ट स्कोर को देखना है. इस स्कोर में लोएस्ट स्कोर कौन सा है, हमारा 6 जो है वो लोएस्ट स्कोर है. यहाँ पे हम द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 6 लिखेंगे. अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू H माइनस L. R इज रेंज. अब हाईएस्ट स्कोर क्या है हमारा 98 और माइनस लोवेस्ट स्कोर 6, दैट इज R इज इक्वल टू 92. ठीक है ना बच्चों. अब इसके बाद हम मीन डिवीजन करेंगे. अब हम मीन डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. मीन डिवीजन, it is also known as average division. Mean division is denoted by MD or AD. AD is average division, MD is mean division. The formula for mean division or average division when scores are ungrouped is mean division. Mean division is equal to sigma x bar upon n. That is, sigma x bar is sum of division or sum of division disregarding sign. This bar represent disregarding signs. N is number of scores. X is a deviation of score from the mean. That is
x is equal to x minus m. Now here we will do one example. Calculate the mean deviation of the following set of scores. इस पे दिया हुआ है आपका रॉ स्कोर. अनग्रुप डाटा में हमेशा रॉ स्कोर दिया होता है. तो रॉ स्कोर हमारा है 7, 10, 12, 16, 17, 20 और 23. अब हमें क्या करना है, इसको टेबुलेशन फॉर्म में लिखेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आएगा आपका स्कोर. स्कोर को हम x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. x में आपका सारा स्कोर आ जाएगा. 7, 10, 12, 16, 17, 20 और 23. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं. मीन डिवीजन का फॉर्मूला है सिग्मा x बार अपॉन n. सिग्मा x बार का मतलब है डिसरिगार्डिंग साइन. x हमारा है डिवीजन. तो डिवीजन निकालने के लिए हमें स्कोर को मीन में से माइनस करना होता है. तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे. मीन का फॉर्मूला है सिग्मा x कैपिटल X अपॉन n. ये हमारा x है, इसका सम. सिग्मा माने सम. सिग्मा x इज इक्वल टू सम ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारा आएगा 105. तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे x बार. ठीक है. x बार को निकालने से पहले हम मीन निकालते हैं. मीन इज इक्वल टू सिग्मा x ना. अब हमारा 105 आ गया. इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 105 हमारा n आएगा. टोटल नंबर ऑफ स्कोर हमारा कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. मीन हमारा आएगा इसको अगर हम 105 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो हमारा मीन आएगा 15 इज इक्वल टू 15. मीन हमारा आ गया यहाँ पे 15. अब x को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है x माइनस m. x यहाँ पे कितना है 7 अगर हम माइनस करते हैं 15 में से 7 माइनस 15 तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 8. -8 आएगा क्योंकि माइनस का साइन जो बड़ा है इसलिए यहाँ पे -8 आएगा. 10 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -5, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 5 और यहाँ पे आएगा आपका 8. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, x को अगर हम बार में रखेंगे, यहाँ इसको हटा देते हैं. अगर x को हम यहाँ पे बार में रखेंगे तो यहाँ हम सीधा अगर माइनस हो तब भी प्लस में, प्लस हो तब भी प्लस होगा. साइन डिसरिगार्डिंग साइन. तो यहाँ पे आएगा 8, 5, 3, 1, 2, 5, 8. अब यहाँ पे हमारा आएगा सिग्मा x इज इक्वल टू, इन सब को प्लस करके हमारा आएगा 32. अब हम मीन डिवीजन के फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आएगा मीन डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा x बार अपॉन n का हमारा क्या आया, सिग्मा x x बार का वैल्यू हमारा आया यहाँ पे 32 और n हमारा है 7. तो मीन डिवीजन इज इक्वल टू
4.57। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने स्टेप्स याद रखना है। अगर बच्चों आपको एग्जाम में स्टेप्स लिखने के लिए आएगा, मीन डिवीजन का स्टेप्स लिखने के लिए आएगा, तो सबसे पहले आपने लिखना है फाइंड आउट द मीन ऑफ सीरीज। हमने यहाँ पे निकाला था मीन का हमने फॉर्मूला यहाँ पे डाल के मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन करके लिखा था। तो आपने सबसे पहले लिखना है फाइंड आउट द मीन ऑफ सीरीज। नंबर 2 पे हमने लिखना है फाइंड आउट एक्स बाय यूजिंग फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था ना, एक्स माइनस एम। नंबर 3 पे आपने लिखना है फाइंड आउट द सम ऑफ डिवीजन और सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ पे। विदाउट टेकिंग द नोट ऑफ साइंस एंड और डिवीजन वेदर प्लस और माइनस शुड बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। अब नंबर 4 पे लिखना है आपने डिवाइड सिग्मा एक्स बार बाय एन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, चेकिंग एंड रिपोर्ट द रिजल्ट। ये हो गया आपका मीन डिवीजन व्हेन डाटा अनग्रुप में हो। मीन डिवीजन अनग्रुप डाटा हमने अभी पढ़ा। उसके बाद हम करते हैं मीन डिवीजन फ्रॉम ग्रुप डाटा। तो इसमें क्या होता है, मीन डिवीजन व्हेन ग्रुप डाटा, इसमें हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों पहले से ही दिया होता है, बाकी हमने निकालना है। तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ क्लास इंटरवल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल एक चार्ट पे बना के लाया है, तो उसी को हम करेंगे 80 to 84, 75 to 79, 70 to 74, ठीक है, 65 to 69, 60 to 64, 55 to 59, 50 to 54, 45 to 49, 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 8, 11, 9, 7, 6, 2 और 1। इतना हमें दिया होता है पहले से ही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें फॉर्मूला मीन डिवीजन, मीन MD, मीन डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा fx बार अपॉन n। मीन डिवीजन अनग्रुप डाटा में क्या था, हमारा सिग्मा सिर्फ x बार था। अब हमारा ग्रुप डाटा में fx बार आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक है। x हम कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। x हमारा है मिड पॉइंट, MP इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अब मैं बताती हूँ आपको। हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर को प्लस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे या लोएस्ट स्कोर या हाईएस्ट स्कोर दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हो आप। 80 प्लस 84 4 16, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 8 16, 2 2 4। हमारा 80 to 84 का मिड पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे 82। अब हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं,
अगर हमने ये वाला फर्स्ट का मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद हमने ये यहाँ पे देखना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम इसमें से फर्स्ट मिड पॉइंट में से हम माइनस करते जाएंगे इन दोनों का डिफरेंस जो कितना है। जैसे कि 80 to 84 का डिफरेंस है 5, तो 82 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा यहाँ पे 77। उसके बाद हमारा आएगा 72, फिर 67। आप बीच में चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। 65 को 69 के साथ प्लस करके फिर डिवाइड करो, फिर आपका आएगा 67। उसके बाद आएगा 62, 57, 52, 47, 42, 37 और आपका आएगा 32। ऐसे आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए x, ठीक है ना। x चाहिए तो x को, ये वाला x के, इस x को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, x माइनस m, ये मीन चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले फिर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा मीन, ठीक है। मीन इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला यहाँ पे है सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है, सिग्मा fx अपॉन n। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका कॉलम आएगा यहाँ पे fx क्या है, fx मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट। fx 82 वन जा, यहाँ पे आएगा आपका 82, फिर यहाँ पे 77 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22, 23, 231। उसके बाद हमारा इसी तरह हमने करना है 231, यहाँ पे 5 को 72 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 31 प्लस 36, यहाँ पे आएगा 7 7 जा 49, 7 4 जा 49। उसके बाद कितना आएगा, 7 6 जा 42, 4 प्लस किया तो 46। इसी तरह इसको प्लस करेंगे 82 और 62, 8 2 जा 16, 8 6 जा 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 1 प्लस 49, 11 7 जा 77, 5 11 5 जा 55, 55 56 57 58 59 60 61 62, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 1 46, 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 और 4 28 29 30 31 32, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 25, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7, 32 1 जा 32। ठीक है बच्चों, अब हमने इनका सम निकालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इनका टोटल करना है। इनका टोटल करने के बाद आपका आएगा 3, यहाँ पे मैंने पहले से करके रखा हुआ है 3420 आएगा, 3420। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन 342, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 3420। अब हम इसको मीन के वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ये है 3420 अपॉन हमारा नंबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू, अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी को हम अगर टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 60। ये पहले से ही दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60, अब इसको 3420 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमारा आएगा आपका 57। मीन हमारा आ गया 57।
आज हम यहीं तक करते हैं, कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं।